नायडू किंजरापू जी। सर, क्वेश्चन 386। मंत्री जी। पटल पर रख दिया गया। Thank you, sir. First question, supplementary. Thank you, sir. I've asked a very detailed question to the Home Ministry, sir, considering the implementation of the AP Reorganization Act. And I was equally expecting a detailed answer regarding this. But what I see here, sir, is a very insulting and irresponsible answer from the Home Ministry, sir. 9 crore people from both the states, Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh, have been looking forward for this answer, sir. And all they see is a lack of interest or lack of knowledge or both, which seems to be true in this case looking at the answer, sir. अपना प्रश्न पूछिए। The question that I have asked, sir, is how much is the implementation of the act, and also the reasons for non-fulfillment of assurances, and what is the proposed deadline? And the answer, sir, I would like to put it on record also. It says large number of provisions of AP Reorganization Act have been implemented. Sir, my question still remains the same, sir. It has not been answered. We are not satisfied. I would like to know from the minister, sir, is he willing to publish a white paper on this so that people of Andhra Pradesh and Telangana know the exact implementation? Because it mentions there are 10 years, sir, but 8 years of it has already been completed. माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा जा चुका है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कुछ ऐसे द्विपक्षीय मुद्दे हैं जिनको राज्यों को आपस में सौहार्द के वातावरण में सुलझाना है। इसमें दोनों राज्यों को कई बार गृह मंत्रालय ने बैठकें कर दोनों के प्रतिनिधियों के साथ कई बार निर्देश भी दिए हैं, सुझाव भी दिए हैं। ऐसे मैं इनको स्पष्ट रूप से यह कहना चाह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 2014 के बाद जितने भी इसमें प्रावधान किए गए थे, 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच समग्र विकास के लिए कई प्रोविजन भी अलग अलग सर प्रोविजन इसमें किए गए हैं, और एक नहीं है, बहुत सारे प्रोविजन हैं जो उस दोनों राज्यों को तय करना है। तो जितने भी मामले अभी लंबित हैं जो विभाजन के बाद दोनों राज्यों में लागू होना था, उन दोनों पे डिपेंडेंट है। उसमें गृह मंत्रालय केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम दोनों को सौहार्द वातावरण में मुद्दों को सुलझाने का कई बार प्रयास किए हैं। अगर किसी मुद्दे पे अगर माननीय मंत्री जानना चाहते हैं तो मैं उनका उत्तर दे सकता हूं। मेंबर, सेकंड सप्लीमेंट्री। That there are issues between the states also, and the states have to sit together. But there are many of the issues which have to be originated from the central ministry themselves. What about the assurances made from the central ministry? What is the status of that? Not one provision has been listed here, sir. It says they are implemented. But how much have they been implemented? If they know that what are the provisions, they could have straightforwardly listed. So I'm still not satisfied. But my second supplementary question is that when the bill was passed in 2014, one of the major assurances made on the floor of the House to the state of Andhra Pradesh was the addition of special status. Because Andhra was getting an unfair deal in this bifurcation, the then Prime Minister Manmohan Singh ji has promised on the floor of the House that Andhra Pradesh should get special status. And the present Prime Minister also in his election campaign and the manifesto also, they have included that Andhra Pradesh is going to get. Now the present Chief Minister of Andhra Pradesh, he also promised that he is going to get. And now the people of Andhra Pradesh are believing that the special status is going to come for Andhra Pradesh. मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जा को परिभाषित करते हुए न विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अब इसका उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। फिर भी जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो उस समय जो आश्वासन मिला था उसके हिसाब से विशेष पैकेज मिला है आंध्र प्रदेश को। वित्त मंत्रालय की विशेष विकास पैकेज के तहत 2014-15, 15-16, 16-17 और 19-20 के दौरान रायलसीमा और उत्तर तटीय क्षेत्र के विकासात्मक गतिविधियों के लिए आंध्र प्रदेश के 7 पिछड़े जिलों के लिए प्रत्येक जिलों को 50 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से आंध्र प्रदेश को 1400 करोड़ की राशि दी। नहीं, एक सर, उसमें विशेष दर्जा की बात नहीं, विशेष पैकेज उसको जरूर दिया गया है उसके विकास के लिए।
14वें वित्तीय आयोग ने 2015 और 20 की अवधि के लिए 22,113 करोड़ रुपयों की अनुशंसा की थी। उसमें से उस 15-20 के दौरान अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 22,111 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। 15वें वित्त आयोग में 2020-21 के लिए आंध्र प्रदेश को 5,897 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा की थी, वह भी राज्य को प्राप्त कर दिया गया है। उसके अलावा जितने भी उनकी जो विशेष बातें हैं, कई उलझने उसमें हैं जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से उसमें हम लोगों को राज्य को ही सलटाना है, और इसके लिए जितनी बैठकें हुई हैं 32 मामले ऐसे थे अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आंध्र प्रदेश ने अपनी बातों की अपनी मुद्दों की एक सूची गृह मंत्रालय को भेजा जरूर था, और चूंकि वह विषय तेलंगाना और राज्य आंध्र प्रदेश के बीच है, वह 32 कार्यों की सूची, उन 32 मुद्दों की सूची गृह मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य को भेज दिया है। ठीक है, धन्यवाद। ताकि उसके प्रकृति के अनुसार उसके मंतव्य उस पे आए, लेकिन तेलंगाना के द्वारा अभी तक कोई धन्यवाद जी उत्तर नहीं मिला है। और यह समझ रहे हैं, मैं एक बार आग्रह करूंगा तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश की राज्य से कि जो भी मुद्दे उनके अनसुलझे रह गए हैं, जो सुलझा नहीं है, उसको आपस में बैठकर सुलझाए। थैंक यू। दोनों राज्य के बीच का है, वही अटका हुआ है।